Hi you guys, welcome back to my channel. I hope you are doing good. Welcome back to a new video and आज का वीडियो बहुत ही chill होने वाला है. Like I have not even planned like what I'm gonna shoot, but I just felt like doing like a sit down video because it's been a while and it's New Year's and there are a few things when New Year comes you try to change and stuff. So I thought we'd talk about that. Meanwhile, like while talking, I'll also do my makeup, which I do like almost every time, but थोड़े बहुत products changed है. I think it's gonna be very fun, chill video, and I have not done such a chill video since so long. I think let's get started with the video. But if you are new here and you haven't subscribed to my channel yet, then hi, my name is Rashi and I would love for you to subscribe to my channel. Also hit the notification bell so you get notified every time I upload a new video. And now let's get started with today's video. पीछे अगर आपको आवाज थोड़ी बहुत आ रही है तो प्लीज अवॉइड करना. मेरा मूड सुबह से बहुत खराब है because I had this mic, right? I have this mic, Digitech का mic I have, and I used to use this, but then when I changed my phone, मेरा जो connector है that became C type because अभी मैंने 16 Pro लिया है. So पहले I used to use 13 Pro, so उसमें नॉर्मल था लाइटनिंग वाला, बट अभी सी टाइप वाला आ गया. सो आई गॉट दिस कनेक्टर जिसमें मैं अपना पुराना माइक यूज कर पाऊँ, बट somehow it doesn't work. I thought first time I tried it, I thought चलो maybe my mic is not charged and stuff इसलिए नहीं हो रहा है, बट अभी भी वो काम नहीं कर रहा है. So I'm so pissed right now. And अभी तो कुछ भी नहीं है. इससे पहले तो इतनी बैंड बाजा शादी बज रही थी and I was like totally कि भाई मैं नहीं कर रही शूट वगैरह, बट देन अभी थोड़ा लो हुआ है तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं. सो न्यू ईयर, आई एम वेरी श्योर बहुत सारे लोगों ने बहुत नए नए रेजोल्यूशंस लिए होंगे, बट आई एम गोना टेल यू लाइक फ्यू थिंग्स दैट आई हैव लाइक written down for myself, and I don't know if I have already started all of them this year. Like अभी तक मैंने ऐसा तो नहीं कि एकदम सब शुरू कर दिया हो, but I will try to incorporate those things which I have written down. I made like a list which is there in my laptop, so मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे बताती जाऊंगी. And I would also want to I would also love to know your guys's what are you planning for the New Year's and how is like everything going. I'm very sure कि when New Year comes like आप लोगों को भी लगता होगा कि some changes you should do in your life and stuff, which is good. So let's start with mine. By the way, जो भी products मैं use कर रही हूँ वो मैं नीचे link कर दूंगी तो आप check कर लेना with like the shades and stuff. So सबसे पहले we're gonna start with the morning only, like what have I changed in the morning, and then we'll go towards the end. बहुत मजा आएगा. So सबसे पहले तो starting में like when I wake up in the morning, I have tried to incorporate like a hot glass of water with lemon in it. पहले मुझे बहुत अजीब लगा था, but then I also thought of adding honey वगैरह in that, but I was like नहीं छोड़ो ठीक है. So a hot glass of water with lemon in it. In the morning I have heard a lot of great things and मुझे इतना time नहीं हुआ उसको consistently करते हुए. So I'm still on that. This is the first this thing I have incorporated. जो second thing है that is super small, but taking a shower instantly when you wake up. Like I was a person, मैं उठती थी आराम से and I used to feel कि जैसे मैं लेट उठ रही हूँ और फिर मैं लेट भी if I am taking a shower very late, मुझे इतना आलस आता था and उस टाइम मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं होती थी. बट इफ यू आर लाइक वेकिंग अप लेट, समटाइम्स इट हैपेंस, मेरे साथ तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस दैट आई वेक अप लेट. तो मेरे को एक क्विक आदत आई है कि जैसे ही आप उठो ना, विद इन लाइक हाफ एन आवर और 1 hour यू टेक अ शावर, लाइक वट एवर यू डू इन द मॉर्निंग यू डू, एंड देन नहा लो. उसके बाद यू आर फ्री टू डू वट एवर, लाइक फिर आप अपना करो, तो उससे बहुत टाइम सेव होता है. सो दिस इज वन हैबिट दैट आई हैव इनकॉर्पोरेटेड. इफ आई एम गोइंग टू ऑफिस तो मैं तो सुबह नहा ही लेती हूँ ऑब्वियसली, बट इफ आई एम नॉट गोइंग, घर पे हूँ तो सोचती हूँ कि थोड़ा रुक जाती हूँ आराम से. वो आराम में बहुत टाइम वेस्ट होता है. आई एनीवेज हैव a lot of things to do और वो सब मेरा पूरा शिफ्ट हो जाता है शेड्यूल because of such a small thing कि मैं इतना डिले कर देती हूँ. सो दैट आई हैव इनकॉर्पोरेट कि आप जितना जल्दी उठ रहे हो सुबह, कितना भी लेट उठ रहे हो, जो भी आपका शेड्यूल है उस हिसाब से आप जल्दी नहा लो एंड जस्ट बी डन विथ योर नॉर्मल थिंग्स एंड देन यू कैन मेक आउट टाइम फॉर योर अदर थिंग्स एज वेल. नेक्स्ट इज ऑल्सो लिटिल मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन. एक थोड़ा सा हैबिट बना लो अपना स्किन का ध्यान रखने का. ऑब्वियसली इंटरनल हाइड्रेशन इज सुपर इंपॉर्टेंट, एज आई सेड कि ग्लास ऑफ वार्म वाटर अगर सुबह पी सकते हो आप तो पियो. बट एक सिंपल सा रूटीन, लाइक सिंपल सा स्किन केयर रूटीन, 2-3 प्रोडक्ट्स बाई कंटिन्यूस प्रोडक्ट्स जो आपके सूट करते हो, बिकॉज उससे स्किन भी आपकी हाइड्रेटेड रहती है. एंड यू शुड फॉलो दिस रिलीजियसली. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो पूरे दिन मुंह नहीं धोते, एंड देयर आर पीपल जो सुबह सिर्फ उठ के मुंह धो लेंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्लीन योर फेस एटलीस्ट ट्वाइस, इवन इफ यू आर नॉट गोइंग आउट. घर पे भी धूल होती है, जस्ट सो यू नो. तो at least incorporate like a very simple morning skincare routine for sensitive skin. There are a lot of good brands, Cetaphil and everything. तो आप एक simple सा morning skincare routine बनाओ, just follow it religiously. With time, you will also feel that your skin is also like skinning. One more thing that I have incorporated is journaling. मैं पहले करती थी, but जब मेरा मन करता था तब करती थी. अभी मैंने सोचा यार मैं कुछ भी लिखती जाऊँ, मतलब दिन में मेरा कुछ भी हो रहा है, like इस बुरे से बुरा भी दिन गया ना तो मैं उसको लिख लूँ.
बिकॉज मैं पहले जब 2021 में मैं बहुत जर्नलिंग करती थी, तब मेरी लाइफ का फेज उतना बढ़िया नहीं था. सम थिंग्स वर हैपनिंग, घर पे थी मैं, कुछ कुछ होता रहता था, तो आई वॉज वेरी लाइक सैड एंड स्टफ. जो भी लॉकडाउन वगैरह भी था, पोस्ट लॉकडाउन एक्चुअली, इट वॉज सेकेंड वेव आई गेस, एंड आई यूज्ड टू फील सो लाइक मेरा कुछ नहीं हो सकता टाइप्स. वो और तब भी मेरा यूट्यूब चैनल था, तो तब मैं ना बहुत ये थी, लाइक आई वॉज नॉट in my zone and stuff, so I used to write. Now when I read it now, guys, I'm not even kidding, मेरे आंसू आ जाते हैं. Because it's not that I feel sad for myself or stuff. It was like यार, because at that point of time I didn't realize कि हाँ एक ये भी time होगा जब मैं वो पढ़ूंगी 4-5 साल बाद, and my life would have changed so much. तो ये सब मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आफ्टर लाइक ईयर्स एंड ईयर्स, 2-3 ईयर्स, आजकल तो साल कैसे निकल रहा है आपको पता है. सो आफ्टर 2-3 ईयर्स इफ यू रीड दोज थिंग्स, you'd be able to judge yourself and you'd be also able to see the progress that you have made. So a little journaling, ज्यादा नहीं, you can write like थोड़ा बहुत लिख सकते हो यार दिन के बारे में, 4-5 लाइन, कैसा रहा दिन, क्या किया, लाइक stuff like that. And when you do that, right, जब आप ये करने लगते हो ना, you will get this sense of peace, और आपको समझ में भी आएगा, यू कैन एनालाइज दैट व्हाट, लाइक क्या टाइम पास किया आपने या फिर क्या टाइम इन्वेस्ट करा है आपने. सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव लाइक स्टार्टेड टू डू. अभी मैं आगे जो आपको बताने वाली हूँ बहुत सारी चीजें दैट आई वांट टू डू, आई हैव नॉट स्टार्टेड येट, बट विल इवेंचुअली गो थ्रू इट, बिकॉज अभी कितना ही टाइम हुआ है, लाइक न्यू ईयर शुरू तो हो गया ऑब्वियसली, जनवरी खत्म होने वाला है, बट धीमे धीमे होता है शुरू. अगर आप एक साल में एक हैबिट भी बदल रहे हो ना कंसिस्टेंटली, तो वो बहुत है. सो मेरे को तो वैसे ही मजा आता है कुछ कुछ नया ट्राई करने में. सो ये तो मैंने अपने लिए सेट करे गोल्स, जरूरी नहीं कि आपको भी करना है, बट जस्ट सेइंग. फिर बात आती है, मेरे से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि आप मैनेज कैसे करते हो, टाइम मैनेज कैसे करते हो. मैं कभी कभी बहुत पागल हो जाती हूँ एंड मेरे को बहुत गुस्सा आता है खुद पे, बिकॉज कभी कभी मैं भयंकर टाइम पास करने लग जाती हूँ. एंड फिर मुझे लगता है, मतलब मैं प्रायोरिटाइज नहीं कर पाती काम को कि यार, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत ही सिंपल सी एक चीज बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ ब्रांड वीडियो दैट आई वांट टू गिव अर्जेंटली, ओके, एंड आई एम गेटिंग रेडी फॉर दैट, ओके, मुझे तैयार व्यार होकर ब्रांड को वीडियो देना है, उस टाइम मेरे दिमाग में आएगा कि मुझे रील बनानी है, ट्रांजिशन, तो आई हैव नो सेल्फ कंट्रोल. एंड फिर अगर मैंने रील बना ली गाइस, तो वो उसी टाइम पोस्ट भी होगी एडिट करके. सो आई हैव दिस प्रॉब्लम विथ मी दैट अगर मुझे कोई काम है ना, उस टाइम मुझे कुछ नया आइडिया आता है, तो मैं उसको उसी टाइम इनकॉर्पोरेट करने का मन करता है एंड उसी टाइम पोस्ट करने का मन करता है. सो मैं आपको एक सीक्रेट बात बताती हूँ. मोस्ट ऑफ द रील्स दैट यू सी ऑन माय इंस्टाग्राम, व्हेन आई पोस्ट दैट, चांसेस आर कि मैं वही कपड़े पहन के बैठी भी हुई हूँ और फोन पे ऐसे स्माइल कर रही हूँ कि हाँ क्या लाइक्स है, क्या कमेंट्स है, बिकॉज आई एम लाइक दैट. मतलब आई एम वेरी दिस थिंग, अगर करना है तो करना ही, अभी करना है ऐसा. सो इस चक्कर में मैं बहुत सारी चीजें प्रायोरिटाइज नहीं कर पाती. अब वो ब्रांड वीडियो तो रह गई ना, लाइक इट विल गेट लेट, फिर मैं उसको बाद में एडिट करूंगी, बाद में दूंगी, तो ये सब चीजें होती है. आई डोंट नो मैंने एकदम ऐसे कैजुअली क्यों शेयर कर दिया, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर बिकॉज हम बहुत टाइम से एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड आई डोंट नो कितने लोग कनेक्टेड है, बट मैं तो पता नहीं कब से इस चैनल पे बहुत सारी चीजें शेयर कर रही हूँ. सो आई हैव नॉट लाइक, अब तो जो भी होता है वो आपको पता होना ही चाहिए. सो दिस हैपेंस विद मी. ये अब मैंने सोचा है बहुत ही रियलिस्टिक गोल्स बनाओ दिन के. अगर आपको 2 काम है तो 2 ही काम लिखो उसमें. इट्स वेरी गुड इफ यू डू 3 or 4 वर्क, बट वो 2 होने चाहिए. टाइम ब्लॉकिंग करके एक चीज होती है जिसमें आप कैलेंडर ब्लॉक करते हो कि 10 से 10:30 मुझे ये करना है, 10:30 के बाद मुझे 10:30 के बाद 1 घंटा मुझे ये करना है. तो इससे आपका प्रोडक्टिविटी रहता है एंड यू नो व्हाट टू डू, लाइक आपने प्लान कर रखा है. अगर आपसे टाइम ब्लॉकिंग भी बहुत हेक्टिक लगता है, तो आप सिंपल से सिंपल एक टू डू लिस्ट बनाओ, उसमें लिखो कि मुझे ये करना है. आपको पता है, मुझे पहले लगता था कि आप तो मेरा कॉलेज पास हो गया है, मैं तो नौकरी भी लग गया, अब मैं क्या पढ़ाई लिखाई करूंगी. वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, लिखना बहुत जरूरी है. आज भी मैं जैसे फोन पे कितना भी लिख लूं, लेकिन जब तक मैं ऐसे डायरी में नहीं लिखती कि मुझे क्या करना है, मेरे से नहीं होता काम. द फीलिंग ऑफ कटिंग दैट आफ्टर डूइंग दैट वर्क इज अनरियल. तो मतलब मुझे तो ऐसा बहुत लगता है कि मैं तो बहुत शौकीन हूँ ऐसे लिखने की डायरी वगैरह में. मेरे पास 3-4 डायरी हैं जिसमें मैं कुछ भी लिखती रहती हूँ. सो लिखना बहुत जरूरी है. अगर आपको कुछ काम करना है ना, वो ऐसे नहीं होगा. यू हैव टू राइट इट डाउन, यू हैव टू, एंड देन आपको अंदर से भी लगेगा कि यार भाई आई हैव टू डू दिस वर्क. सो इफ यू कैनॉट डू लाइक द टाइम ब्लॉकिंग थिंग, आप इसके बारे में और भी पढ़ सकते हो गूगल वगैरह पे, टाइम ब्लॉकिंग क्या होता है. बट इफ यू डोंट वांट टू डू दैट, देन यू कैन गो फॉर लाइक टू डू लिस्ट एटलीस्ट अपनी बना के रखो रात में कि आपको अगले दिन क्या करना है, हाउ डू योर डे शुड लुक लाइक. अभी थोड़ा सा हैबिट्स वगैरह पे आ जाते हैं. मैंने बहुत कोशिश तो कर रही हूँ मैं कि मैं दिन के 10,000 स्टेप्स वगैरह करूं कंप्लीट. मेरे से एक भी दिन ऐसा हुआ नहीं है कि हुए हैं 10,000 कंप्लीट, बट यू नो स्मॉल विंस. मैं जिम वगैरह नहीं जा पाती हूँ अभी बिकॉज ऑफ माई शेड्यूल एंड बहुत ज्यादा इधर उधर हो रहा है सब कुछ. बट मेरे पास, क्योंकि आई हैव अ वॉच एंड आई हैव दिस फोन, अब तो बहुत सारे एप्स भी आते हैं, हर फोन में आता है. पेडोमीटर करके एक ऐप आता है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो हाउ मेनी स्टेप्स यू आर गोइंग. मैंने बहुत सारे रील्स देखे जिसमें वो बोलते हैं इफ यू डोंट गो टू जिम और इफ यू डोंट वांट टू वर्क आउट एट होम, यू जस्ट नीड टू डू लाइक 10,000 स्टेप्स
ईजी, हाँ, सुनने में बहुत ईजी लगता है लेकिन इट्स नॉट दैट ईजी। 10,000 स्टेप्स इज नॉट ईजी। सो अगर आप ऑफिस वगैरह जा रहे हो तो हो जाता है मतलब, बट अगर आप घर पे ही पड़े हुए हो जैसे आप छुट्टी वगैरह के दिन तो बहुत मुश्किल है। सो 10,000 स्टेप्स का मैंने रखा है टारगेट। अभी तक तो मैं फुलफिल नहीं कर पाई उसको, बट चलो, इट्स नेवर टू लेट, we'll try धीमे धीमे। Next we're gonna move on to a very important factor which is finances, and financial habits बहुत ज़रूरी है लाइफ में। Even if you are earning a lot जो भी, but if you're not managing what you're earning, it's just as bad. So सबसे important है financial tracking में what are you spending on, like you have to prepare this sheet, you have to एक्सेल शीट बनाओ, मतलब मेरे तरह एक्सेल शीट बनाओ, राइट योर एक्सपेंसेस डाउन, व्हाट आर यू स्पेंडिंग ऑन, लाइक आस्क योरसेल्फ, बिकॉज मैं तो कभी कभी क्या करती हूँ, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, दिस वीडियो हैज गॉन वेरी रॉ, ओके नाउ। सो मैं क्या करती हूँ, जब मेरा बहुत पैसा खर्च हो रहा होता है, लाइक स्मॉल ट्रांजैक्शन, बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है, पता नहीं चल रहा, मैं डर के मैंने अपना अकाउंट ही नहीं खोलती, बिकॉज आई कैन नॉट सी कि क्या किया मैंने। सो नाउ यू हैव टू डू वॉट, यू हैव टू लाइक मेक एन एक्सेल शीट, एंड एवरी डे रात में 5 मिनट का टाइम सब पे होता है, जस्ट राइट इट डाउन, लाइक क्या स्पेंड करा है, किस पे स्पेंड करा है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। कोई नहीं आपसे पूछ रहा कि क्यों किया, कहाँ किया, नो बडी इज आस्किंग, जस्ट फॉर योर सेक। देन टुवर्ड्स द मंथ एंड आप देख सकते हो कि इतना इतना यहाँ पे हुआ है। एक्सेल शीट बनाओ, थोड़े फॉर्मुलेज वगैरह लगाओ उसमें गूगल से देख के, इवन द नॉन टेक पीपल कैन डू इट, सुपर इजी, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें, बट फॉर्मुलेज वगैरह लगाओगे तो एक्सेल शीट से आपको एक प्रॉपर ऐसा प्रोफेशनल ये मिलेगा। एक्सेल शीट इज सुपर इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बहुत सारी चीजें कर सकते हो आप उससे। सो फाइनेंशियल ट्रैकिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट आई हैव रियलाइज लेटली। भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे करनी है ये साल इज टू स्टार्ट रीडिंग। पीपल जो लोग मुझे ना, वो लोग बहुत इंट्रीग करते हैं जो बहुत किताबें पढ़ते हैं, लाइक आई एम नॉट अ रीडर एंड आई वुड लव टू बी अ रीडर। फॉर एग्जाम्पल प्राजक्ता कोहली, द वे शी स्पीक्स, लाइक मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आई लुक लाइक हर एंड स्टफ, आई माइट लुक लाइक हर, आई एम नॉट लाइक हर, आई एम नॉट एज वाइज एज हर, बिकॉज भाई शी, I have seen her interviews and stuff, the confidence that she has, and you know, your vocabulary instantly amps up when you are like reading and stuff. Sometimes even I fumble upon some things जो मुझे convey करना है, लेकिन I'm not finding the right words. Reading comes in help अगर आप बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हो, so you just frame sentences in your head, you get to learn a lot of new words and stuff. तो reading मुझे शुरू करनी है, and I want to start, I have मतलब मेरा है ये कि मैं थोड़ा थोड़ा रीड करूँ, एंड स्क्रोलिंग बहुत बुरी चीज़ है, वो बहुत कम करनी है मेरे को, इवन दो दैट इज माई वर्क, लाइक आई हैव टू, बट मैं बहुत टाइम पास भी करती हूँ, मैं एक्चुअली आपको सच बताऊँ तो। सो आई हैव टू डू दैट, एंड इसके अलावा एक सेकेंड, बाय द वे दिस लिप्टन फ्रॉम पेरी पैरा, माई एब्सोल्यूट फेव, इसको मैं बेयर लिप्स पे भी लगाती हूँ ना, सुपर स्टनिंग। मैंने ये सिंपल मेकअप है, मैं ऑफिस में भी ऐसे ही जाती हूँ करके कुछ, एंड अभी मैंने पाउडर नहीं लगाया है बिकॉज ये क्रीज हो जाएगा, बट मैंने बीबी क्रीम लगाई हुई। सो एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो चलो हो गई सारी अच्छी सीखने वाली बात है, अब कुछ ऐसी चीजें जो मैंने सीखी हैं जो मुझे इस साल नहीं अपने साथ ले जाना है, वो है कि if I don't want to do a thing, I will not do it just for the sake of it. अगर मुझे नहीं करना, अगर for example as simple as if I don't want to go out with you today, I will not go out. Because मेरी मर्जी, it's like my life and मेरी इच्छा है नहीं जाना आपके साथ में. So you know मैं क्या बोल रही हूँ, just simple, मेरे हिसाब से बहुत ही limited लोग रखो. Even if you have a lot of friends right now, you will eventually जब आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, you will feel like कि हाँ यार, you know, people are getting like detached. ऐसा नहीं कि लड़ाई वगैरह हो जाएगी, but it's like simple, आपको भी इच्छा ही नहीं होगी ज्यादा बात करने की. मेरी लाइफ में इतने close friends हैं मेरे कि मैं उनको उंगलियों पे गिन सकती हूँ. That is it, and I am so grateful for it that way only because मैंने बहुत सारे friends रख के भी देखे हैं, and it just becomes chaotic. I'll tell you. I'll be 25 this year, so I have seen like fair share of these things. So मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में हर कोई आता है ना, उसका एक पर्सपेक्टिव होता है. लाइक अगर वो आपकी लाइफ में एंड तक रहते हैं तो दैट इज वेरी ग्रेट, बट अगर वो लोग आपकी लाइफ में नहीं रहते हैं, नहीं टिक पाते, सो दे वर सपोज टू टीच यू अ लेसन. दैट इज हाउ यूनिवर्स वर्क्स. सो आपको हर किसी को इतना दिल पे नहीं लेना है कि भाई मैंने क्या किया, एम आई दैट बैड दैट पर्सन डिडंट लाइक be with me or left me or stuff like that. I'm not talking specifically about relationships, I'm talking about friendships as well. So that happens. अभी मुझे ऐसा लगता है कि जितने कम लोग हो ना उतना ही बेटर है, because of my mental peace also. मेरे पे भी इतना टाइम नहीं है कि मैं सबको entertain करूँ, and I would want कि अगर मेरे कोई friends हैं तो मैं उनको पूरा टाइम दे पाऊँ, like you know, मैं उनकी भी प्रॉब्लम सुनूँ. एंड अगर आपके पास पूरा भंडार ऑफ दोस्तों का तो आप कैसे कर पाओगे. सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है, आपको मैं गलत भी लग सकती हूँ इस टाइम पे, बट मेरा सिर्फ पर्सपेक्टिव ही है बिकॉज ये मेरी वीडियो है मेरे चैनल पे. सो इसीलिए जस्ट मेरा एक थोड़ा सा ये था कि कम लोग रखो अपनी लाइफ में. लेटर ऑन यू विल रियलाइज दैट हाँ ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग नहीं चाहिए लाइफ में. एंड उसके अलावा इन्स एंड आउट्स में ज़्यादा है कि ज़्यादा फालतू के खर्चे नहीं करने. मैं वैसे भी बहुत ही माइंडफुल
खर्चा करती हूँ। मेरे बहुत मोस्टली खर्चे खाने वगैरह पे ही होते हैं, बट ऐसे मैं कोई वैसी नहीं हूँ कि मेरे को लग्जरी ये चाहिए वो चाहिए, जो भी ज़्यादा इतना कुछ नहीं है। बट अभी इस साल और भी कम करना है, लाइक थोड़ा सा सिंपल रहने की कोशिश है। ओके एंड वैसे मेरा काम ऐसा है कि मुझे थोड़ा बहुत तो खरीदना पड़ेगा, बट इतना नहीं कि मतलब अंट-शंट खरीदे जा रही हूँ। जैसे पिछले साल मेरे को बैग्स का बड़ा क्रेज था, इतने बैग लिए मैंने, इतने बैग खरीदे कि अब मुझे लगता है कि क्या करूँ मैं, खरीद लिए रखे हुए हैं, क्या होगा उनका। सो यू नो दीज थिंग्स आई लर्न ऑन माई ओन ओनली। आप मुझे अगर बोलोगे कि बैग मत लेना, तो वो मैं ट्रिगर हो जाऊंगी उससे कि क्यों नहीं लेना। आई हैव टू रियलाइज दैट माई सेल्फ कि मुझे नहीं लेना, आई विल नॉट बाय। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्टे इन टच विथ योर फैमिली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मेरे साल का है ही, एंड आई एम ऑलवेज इन टच विथ माई फैमिली, लाइक always. So that is very important, that keeps me grounded, that keeps me positive, and मुझे थोड़ा and they keep me super grounded. If you guys don't know, मैं पूजा भी करती हूँ रोज सुबह। So मुझे बस ऐसा लगता है पूजा करके कि वो कोई है मेरे साथ में, you know, if nothing's gonna, अगर कुछ गलत हो रहा है आप देख लेना, ओके। इस टाइप का मेरा सीन है कि मैं तो लिटरली ऐसे ही बात करती हूँ कि कुछ हो रहा है आप देख लेना, जो भी है आपके सामने हो रहा है, अब आप मैनेज कर लो, मुझे नहीं पता। सो ये सब थोड़ी चीजें हैं, ज्यादा मैंने शेयर कर दिया हो तो मुझे नहीं पता, बट अब जो है यही है। बट दिस इज व्हाट आई हैव क्रिएटेड एंड आई वांट टू शो यू समथिंग एज वेल। वेट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट वेयरिंग अ टॉप, इट्स अ ड्रेस। मैं इसका ना वीडियो अटैच कर दूंगी। दिस ड्रेस दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ इज ऑल्सो फ्रॉम Amazon. आई विल टैग इट। दिस इज फ्रॉम Tommy Hilfiger एंड सुपर गुड क्वालिटी। दिस ड्रेस इज सो गुड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड ये भी मुझे आई गेस 1700-1800 की पड़ी थी, जो कि बहुत अफोर्डेबल है, ऑलमोस्ट एट 55% ऑफ, बिकॉज टॉमी के कपड़े बहुत महंगे आते हैं। एंड ये इसका ओरिजिनल प्राइस आई गेस 3200 समथिंग है, बट मुझे ऐसी ब्लैक ड्रेस चाहिए थी सिंपल, सो आई गॉट दिस। एंड सेकेंडली आई गॉट अ बैग ऑल्सो। इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव बाय द वे, Amazon से लिया है मैंने, इट्स फॉर 1700। एंड मुझे ऐसा बैग चाहिए था ब्लैक कलर का, जो सिल्वर, जिसमें ना सिल्वर डिटेलिंग हो। सी दिस बैग, परफेक्ट और वॉट। एंड दिस इज फ्रॉम मिराजियो के बैग्स तो बहुत प्यारे होते हैं। मैं इसको ना जब से आया बहुत यूज कर चुकी हूँ, मैं इसको 1-1.5 हफ्ते से तो यूज कर ही रही हूँ, और मैं हर जगह ले जाती हूँ बिकॉज सब पे चला जाता है। कम्स विद अ सिल्वर चेन, जो कि काफी हैवी भी है और अच्छी क्वालिटी की भी है। इसके अंदर ऐसा आपको खुलने मिल जाता है, एंड यू हैव प्लेंटी ऑफ स्पेस। इसमें आपको ना, मेरा तो इसमें सारा सामान आ जाता है। व्हाट आई यूजुअली कीप इज, आई कीप एयरपॉड्स, आई कीप अ मिनी परफ्यूम, आई कीप माई हाउस कीज, आई कीप अ माउथ फ्रेशनर एज वेल, तो वो सब आ जाता है इसमें आराम से, एंड थोड़ा बहुत कैश वगैरह। सो जस्ट वॉन्टेड टू शो यू दिस। मैंने बहुत कुछ बोल दिया, आपको शायद बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी, शायद कुछ ऊपर से भी गई हूँ, सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट इफ दैट हैपेंड विथ यू, बट आई एम जस्ट सो हैप्पी टू मेक दिस वीडियो, एंड आई होप ये साल बहुत बहुत अच्छा हो सबके लिए। जस्ट all you have to do is just be positive and trust the process, and थोड़ा बहुत changes अपने में लाने होते ही हैं हर साल थोड़े बहुत, so you have to do those things and life will be good guys. And with that मैं आज का वीडियो भी फिनिश करूंगी। Thank you so much for watching. If you enjoyed watching this, then give it a big fat thumbs up, subscribe to my channel if you haven't already, and follow me on my Instagram. This is my Instagram handle, and I'll see you super soon in my next video. Till then, bye bye toodles.